So, welcome to this class in which we are going to study the remaining part of phase lock loop. So, this is part 4 of that. Today, we will understand capture and lock range and a demonstration. So, today we'll have rather faster demonstration. Earlier, we had slow demonstrations, but we had one level of understanding, but this will be enhanced today, and then we'll cover applications as frequency multiplier. So frequency multiplier, let me tell you right now that frequency multiplier is a circuit which will multiply the frequency. For example, if you take f in as some frequency and f out, then you can multiply it by n or any value that you want. N may be an integer or sometimes fraction also. Now, where it is useful, suppose you have a chip which is driven by a crystal. Now, this crystal value typically will be fixed. Since we know 12 megahertz, we have written 12 megahertz, but it can be anything. Now, inside this processor, there will be a circuit. Now, I have drawn a larger circle, but it will be a smaller part of the chip. So, this particular circuit will have this clock frequency or crystal frequency as input, crystal oscillator frequency, because anyway, and then there will be some then there will be PLL inside, and this is a programmable PLL. How it is programmable we do not know now, but it's a programmable, and based on the value that you want to program, in a sense configure, the output can be fx into n. So this may be 12 megahertz, but this can be 48 megahertz. So the processor can work at 48 megahertz even though crystal is 12 megahertz. Sometimes it may work at 24 megahertz. Sometimes you make it work at 1 megahertz, in which case you need to divide. So the processor can be run at variety of speeds based on the need, and that will make the system better than if it is having fixed clock frequency. Did you understand? How does it happen? We'll see. But this is one of the application of PLL which we will see after the demo is over. Is this fine? Yes or no? Are you listening to some hissing sound? Because there is a fan going on in my machine. So today I don't have any headphone as such, so please bear with me. If it is too large, please tell me so that we can take a pause for some time. Okay? Because listening to hissing sound continuously is not very good. And unfortunately the mic might be near that, so multiple audio problems today. Anyway, so let us start with the characteristics. So let us have a revision. So this is the free running frequency which will be there if there is no input. Right. This is the first thing. When you apply the input, suppose this is the frequency, but since it is away from the free running frequency, the difference is large and it doesn't pass through low pass filter, and therefore there is no locking that will take place. So unlocking will continue till you go close to the free running frequency. So as soon as you reach the range at which capturing of the lock is possible, capturing will take place, and capturing means going to the input frequency. So going to the input frequency means output frequency and input frequency will match. So output frequency will come down, and then the lock will continue
it will continue till there is a possibility that VCO can handle that frequency, and then the output will be unlocked. Okay, so this is locked. I think I have written that. Unlocked. So I think locked portion I will mark by green, and locked portion I will mark by unlocked, I will mark by red. Is this to some extent clear? Is it visible? I will rub out some of the unnecessary things because that is cluttering the whole thing. Right. So let us see the demo. Shall we see the demo? Before we see the demo, we will imagine a situation like Pooja is doing this experiment. Suppose Pooja is doing this experiment. Obviously, I will try to draw picture of Pooja like this. Okay. Alright. So this is Pooja, and she is doing experiment of PLL, for which she has taken PLL, ready-made PLL, and then she has some signal source or frequency source, and what she is doing, she is setting low frequency, and then she is increasing the frequency, and then she is decreasing the frequency, and she is observing what is F out. Did you understand this much? Yes or no? Hello? Okay, good. Pooja understood that. Very good. So you are increasing the frequency, और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करना है? यहाँ से यहाँ तक जाना है, और फिर वापस यहाँ से यहाँ आना है. ठीक है? लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट चेंज करना है, ये इनपुट, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी से वापस लो फ्रीक्वेंसी आना है. समझ में आ गया क्या? यस और नो? हाँ, ठीक है. तो व्हाट पूजा डिड, शी प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ इनपुट. पूजा ने किया क्या? शी प्लॉटेड ग्राफ ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी कि वॉट एवर शी इज गिविंग शी प्लॉटेड. तो प्लॉट करने के लिए उसने टाइम एक्सिस पकड़ लिया, क्योंकि बिकॉज शी इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट इन रियल लाइफ. ऐसा समझो, शी इज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन रियल लाइफ. तो उसको पहले फ्रीक्वेंसी कम रखना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा रखना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा, 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 फिर मैक्सिमम, फिर लो लो, ऐसा करते शी विल डू दैट. ये समझ में आ गया आपको? और y एक्सिस पे क्या होगा? F. यस और नो? इतना समझ में आ गया क्या? ओके, गुड. तो पूजा ने ये फ्रीक्वेंसी चेंज करके ग्राफ निकाल दिया, बिकॉज दिस इज इनपुट, आउटपुट अभी नहीं निकाला हमने. ठीक है? तो प्रोटीस में ये सिग्नल हमको जनरेट करना पड़ेगा. जनरेट दिस इन प्रोटीस. तो कैसे जनरेट करना है मैं दिखाऊंगा, लेकिन
दिखाने से पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है, राइट। नाउ इन दिस ग्राफ वी विल ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे कि F0। थोड़ा सा ये गड़बड़ वाला कलर है, आई विल टेक फेंट कलर। F0, व्हाट इज दिस F0? ये क्या है F0? कैपिटल F0 क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, नॉट मैक्सिमम, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी। यस, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, जब इनपुट नहीं होता है तब की फ्रीक्वेंसी। और एक्सपेक्टेड ग्राफ क्या होगा ये देखिए। एक्सपेक्टेड ग्राफ तो पहले हम एक्सपेक्टेशन रख देते हैं, बाद में सिमुलेशन देखते हैं, वैसा का वैसा आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि, और पूजा ने किया कि छोटा फ्रीक्वेंसी लगाया, तो इसका डिफरेंस है ना वो ज़्यादा है, डेल्टा एफ लार्ज, तो लॉकिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी F0 रहेगा, यस और नो? आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी F0 ओनली। तो मैं कहाँ कैसे लिखूँ, थोड़ा अलग कलर लेता हूँ, ब्लू वाला, ठीक है। ये ब्लू वाला आउटपुट है, ठीक है। देखो इनपुट अभी बढ़ रहा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। आउटपुट वैसा का वैसा है, क्योंकि इनपुट और फ्री रनिंग में ज़्यादा डिफरेंस है। जब हम क्लोज जाते हैं, फ्री रनिंग के क्लोज जाते हैं, तो लॉक होता है, और लॉक होता है यानी कि इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो ये कैसे दिखाएंगे? इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज होके यहाँ आती है, एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलोइंग, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ फॉलोइंग पॉसिबल नहीं, बिकॉज VCO के कैपेसिटी के बाहर गया, तो लॉक अनलॉक हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा सडनली, और ये अनलॉक कंडीशन वैसे की वैसे रहेगी। फिर पूजा क्या करेगी? इनपुट फ्रीक्वेंसी कम करेगी, ठीक है। तो शी विल चेंज द फ्रीक्वेंसी, और जब इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगी यानी कि क्लोज टू फ्री रनिंग, तो फिर से लॉक एस्टेब्लिश होगा, यानी कि ये ऐसा होगा, और वो लॉक वैसे के वैसे चालू रहेगा। और फिर ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ VCO बोलेगा कि इससे कम फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आई एम गोइंग टू लूज द लॉक, तो लूज ऐसा होगा लॉक, और फिर वैसा का वैसा रहेगा। तो ये नीला वाला है वो आउटपुट है, और ग्रीन वाला है वो इनपुट है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो करके देखें अभी। यस गुड। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लेना। वी समटाइम्स अंडरस्टैंड क्विकली, समटाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड क्विकली, हमारा दिमाग ऐसा है ही, वी ह्यूमन्स आर लाइक दैट, बट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट फॉर सम टाइम, आस्क डिफिकल्टीज एंड देन अंडरस्टैंड। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पीरियड, ये एक्चुअली प्रैक्टिस है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता है, एंड देन यू फोर्सफुली मेक द ब्रेन टू कॉन्सेंट्रेट, एंड देन यू लर्न दैट। इसका ये प्रैक्टिस है। सेम सिचुएशन जब भी इंडस्ट्री में आए और बॉस बोलेगी कि ये नया प्रोजेक्ट है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, देन यू विल हैव दैट दिस प्रैक्टिस हेल्पफुल। आपका दिमाग तब तक ऐसा ट्रेन हुआ होगा कि तब आपको कुछ नया नहीं लगेगा, यू विल बी क्विकली अंडरस्टैंडिंग, और यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग, यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर मोर टाइम। ये आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, सो लेट अस गो टू सिमुलेशन। सर्किट तो वैसे वही है, आई हैव रिमूव्ड मैंने रिमूव क्या किया,
आप बताइए क्या रिमूव किया मैंने? फ्रीक्वेंसी मीटर मैंने रिमूव किया, फ्रीक्वेंसी मीटर रिमूव किया बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर मैंने रिमूव किया और ग्राफ डाल दिया। अभी क्या किया मैंने? इधर ग्राफ डाल दिया। और ग्राफ है क्या? लेट मी शो यू द ग्राफ। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। डिलीट ट्रेस और डिलीट ट्रेस। ठीक है, अपने ग्राफ में अभी कुछ भी नहीं है। दिस इज एक्चुअली एनालॉग ग्राफ, एनालॉग ग्राफ। तो मैंने क्या किया है कि जस्ट लुक एट दिस, आई डिड नॉट प्लॉट फ्रीक्वेंसी, आई प्लॉटेड द वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ VCO। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है तो वो आराम से आ जाएगा। सो व्हाट आई डू इज आई प्लॉट दिस वोल्टेज। ठीक है, तो मैंने ये इसको आई विल जस्ट मिनट, आई विल पुट दिस ऑन द ग्राफ, ड्रैग करके और ड्रॉप करके। हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द वोल्टेज इनपुट टू द VCO विच विल गिव वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टू PLL। ये VCO अलग है, दिस VCO इज अलग, दिस इज पार्ट ऑफ PLL। ये PLL का पार्ट नहीं है, हमारे टेस्ट सर्किट का पार्ट है। समझ में आ रहा है ना? वी वॉन्ट टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी इनपुट, लेकिन फ्रीक्वेंसी इनपुट हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते। देयरफॉर व्हाट वी आर प्लॉटिंग इज वोल्टेज इनपुट, और हमने यहाँ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर लगाया। यानी कि आप वोल्टेज जो देखोगे उसी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी यहाँ आती होगी। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी इनपुट का प्रोपोर्शनल सिग्नल। अभी हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली लेना यहाँ चाहिए क्योंकि ये VCO है, बट हम तो एनालॉग सिग्नल डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, ये VCO का इनपुट प्लॉट करेंगे, VCO का इनपुट वोल्टेज प्लॉट करेंगे। देयरफॉर VCO का आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, तो कहाँ हमने प्लॉट किया है? यहाँ प्लॉट किया। ठीक है, तो देर आर टू प्लेसेस वी कैन प्लॉट दिस सिग्नल। I have additionally filtered this signal so as to get a clean analog level. So I will drag it and drop it here. And I am dropping on the right hand side because I can have two scales. ठीक है, हाँ, तो I will just shift it somewhere here. हाँ, ये हो गया हमारा ग्राफ। तो अभी हम क्या करते हैं कि इनपुट जो दिया है वो क्या है देखते हैं। व्हाट इज इनपुट? तो इनपुट पहले देख लेना कि ये पल्स, सॉरी नॉट पल्स, पीस वाइज लीनियर वेवफॉर्म। ये क्या है? पीस वाइज लीनियर, यानी हमको जो वेवफॉर्म चाहिए वो हम तैयार कर सकते हैं। पीस वाइज लीनियर, छोटे छोटे पीसेस पे आप ये कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने दो ही पीसेस लिए, 0 to 4 seconds, 4.5 जो भी है। आई विल एक्स मैक्स आई विल मेक इट 4 seconds या 5 seconds समझो। तो अभी तो यहाँ 5 seconds का है नहीं, बट आई विल एडजस्ट दिस 5 जो भी है, 4.5 सेकेंड, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हम सेंटर को भी ले सकते हैं। ठीक है, सो द इनपुट सिग्नल इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 4 volts और 4 volts से नीचे आ रहा है। सेम थिंग व्हाट पूजा डिड इन हर एक्सपेरिमेंट, सेम थिंग। ये ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला है ना इनपुट है, और ये जो सिग्नल है इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये इनपुट सिग्नल है।
It is the analog voltage proportional to frequency, input frequency. Yes or no? आपके यस में बहुत टाइम जाता है, पता नहीं नेटवर्क डिले है या कुछ है। एनीवे, बट ये इनपुट हमने प्लॉट किया, अभी प्लॉट नहीं किया बट इनपुट देखा है। फिर आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट इज PLL का जो VCO रहता है ना, उसका इनपुट है, यानी कि एनालॉग सिग्नल। आई हैव एडिशनली फिल्टर्ड इट जस्ट टू मेक श्योर दैट द वेवफॉर्म वॉट एवर इज क्लीन वन। दूसरा भी कर सकते हैं बट ये करके देखा मैंने, और फिर ऑसिलोस्कोप भी लगाया। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम सिमुलेट करते हैं स्पेस बार। शैल आई प्रेस स्पेस बार? अभी प्रेस करूं स्पेस बार? यस। अभी थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आया होगा बिकॉज आई एम यूजिंग इंटरनल माइक। तो ये सिमुलेशन पूरा साइकिल पूरा करके हमको देखा है। ये यस्टरडे व्हाट वी डिड इज, हर एक फ्रीक्वेंसी को एक एक सेकेंड हम वेट करते थे, बट इस टाइम ये पूरा हो जाएगा। राइट, ये टाइमिंग उसका गड़बड़ हो गया। टाइमिंग इसका कितना चाहिए था? 4 सेकेंड चाहिए था या 5 सेकेंड स्टॉप टाइम। then it will show reduced voltage also. यहाँ आपको थोड़ा डिप दिखाई दे रहा है यहाँ, हाँ, द सेम डिप विच वी ऑब्जर्व और विच वी डिसाइडेड टू, यहाँ का डिप है ना ये। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस। सो PLL इज इन वेरी इंटरेस्टिंग सर्किट, और ये ऐसा सर्किट है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरे कोई सर्किट से। तो जब व्हेन यू गो फॉर प्रोसेसर डिज़ाइन, जैसे कि आप इंटेल में जाओ या क्वालकॉम में जाओ या दूसरा कौन सा गेम कार्ड कौन तैयार करता है? गेमिंग का कार्ड, विच कंपनी? एनीबडी यूजिंग गेमिंग कार्ड? यस, एनवीडिया, उनकर को पता है। तो एनवीडिया में जाओगे तो वहाँ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आपको लगेगा, ठीक है। अभी 5 सेकंड का है, अभी ये कितने टाइम तक जाएगा? वाई इट इज शोइंग लाइक दैट? तो मैं अभी फिर से देखता हूँ वेदर आई, कितने टाइम का ये? अरे 11 सेकंड का है, ठीक है। तो ये फिर से सेव नहीं किया शायद मैंने, बट एनीवे आई विल मेक इट 5 सेकेंड्स। सेव करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ 5 सेकेंड्स हो गए क्या? नहीं, गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है, बट एनीवे हाँ ये सही है, ठीक है। एक बार फिर से करके देखते, और यू कैन ऑब्जर्व दैट द लॉक इज लॉस्ट। यहाँ लॉक लॉस्ट हो रहा है, और ये भी सही है क्योंकि हमने भी वही लिखा इधर। तो वॉट एवर वी गेस्ड इट इज़ हैपनिंग। तो ये पूरा देखते हैं अभी, और ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन,
ये वाला पोर्शन हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ था? इट वॉज हियर. जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू. कहाँ था? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ. और ये लास्ट वाला पोर्शन हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ है. ठीक है. पता नहीं क्या हो रहा है. आई डोंट नो. इज इट ओवर और नॉट? आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. हाँ, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, बट व्हाई इट इज गोइंग वेरी स्लो? बहुत स्लो चल रहा है आज. एक्चुअली व्हेन आई डिड दिस ना, द अदर थिंग्स वेर ऑफ. जैसे कि गूगल मीट नहीं था जब मैंने तैयार किया, रिकॉर्डिंग नहीं था. सो माई सिमुलेशन वेंट वेरी फास्ट. ठीक है, एक बार करके देखते हैं. देन आई विल शो यू ऑसिलोस्कोप आउटपुट ऑल्सो. जैसे कैसे वो लॉक होता है, और हाउ डज द लॉकिंग कंडीशन कंटिन्यूस फॉर सम टाइम. उसके बाद लॉक छोड़ देता है वो. तो एक बार ये ख़त्म होने के बाद मैं वो आपको दिखाऊंगा. अभी 12:55 हो गए, तो वी हैव स्टिल 10 मिनट्स. इसमें हो जाएगा हमारा काम. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी वेरी फास्ट, बट पता नहीं. यस, फिर भी ये कम पड़ गया. अच्छा, what we will do is सिग्नल का टाइमिंग और सिमुलेशन का टाइम इसमें थोड़ा गड़बड़ है, बट इट शुड हैपन एक्चुअली प्रॉपरली. आई विल रिमूव दिस टेम्पोरली, और एक फिर से सिग्नल लगाता हूँ मैं. सिग्नल पल्स विड्थ लीनियर यहाँ डाल दिया, उसको कनेक्ट किया, फिर उसको डबल क्लिक करके पल्स विड्थ 0 to 10 है तो उसको 5 किया, इसको भी 5 किया, और 2.5 किया तो क्यों नहीं है. हाँ, वाइड एक्सपेरिमेंट तो क्यों. एनीवे अभी ये 11 ही रहेगा. आई विल डू इट दिस वे, शायद हो जाएगा. हाँ, ये हो रहा है. पता नहीं क्या हो रहा है. ठीक है, अभी तो हो रहा है. आई विल सेट दिस टू सेट 5. आई डोंट नो व्हाई दिस इज. This is okay. I will once again check it. अरे क्या गड़बड़ कर रहा है.
बट एटलीस्ट यू अंडरस्टूड द वे इन विच वी शुड टेस्ट द सर्किट. ये आपको पता चल गया. यू कैन डायरेक्टली प्लॉट द इनपुट एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिहेवियर. इनपुट फ्रीक्वेंसी हमने स्लोली बढ़ाई और स्लोली कम की. सम पार्ट ऑफ दिस वेवफॉर्म इज नॉट विजिबल हियर, वो अभी हो जाएगा. और आउटपुट जो ग्रीन कलर में ना, वो भी अभी लिखा जाएगा. हाँ यस, ये हो गया. लेकिन इनपुट कहाँ गया हमारा? पता नहीं इनपुट कहाँ गया. Did I remove it? I don't know. बट इनपुट पता था हमको. डिड यू ऑब्जर्व दिस? ये ड्रॉप हो रहा है, लॉक हो रहा है, ये लॉकिंग पीरियड है. और यहाँ अनलॉक हो रहा है. फिर से ये अनलॉक रह गया और ये लॉक होके फिर अनलॉक कंडीशन चालू रहेगा और अनलॉक होगा. और ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, दे आर सेपरेट बिकॉज वी आर ऑन टाइम एक्सिस. टाइम कभी उल्टा नहीं जाता है ना, आपको पता है ना, टाइम कभी उल्टा नहीं जाता. तो पूजा को ये जो पोर्शन है ना, पूजा कैनॉट प्लॉट इट हियर बिकॉज शी हैज़ टेकन टाइम एक्सिस. लेकिन अगर पूजा फ्रीक्वेंसी एक्सिस लेती है तो ये पोर्शन उल्टा यहाँ प्लॉट होगा. ये टाइम एक्सिस है, सी टाइम एक्सिस, ये आपको पता होगा. और इफ़ यू टेक नॉट टाइम एक्सिस, समथिंग डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी एक्सिस लिया तो ये ऐसा हो जाएगा. यानी कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड तो आपको यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है. ठीक है, इसलिए ये पार्ट लॉकिंग वाला और ये पार्ट लॉकिंग वाला अलग अलग दिखाई दे रहा है. ठीक है, और ऊपर वाला जो वेवफॉर्म मैंने दिखाया था यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ये इसके अंदर उल्टा होके प्लॉट होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, और फिर यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो लॉकिंग अनलॉकिंग आपको दिखाई दे रहा है एटलीस्ट. आउटपुट इज फॉलोइंग इनपुट फॉर ड्यूरिंग लॉकिंग पीरियड. तो हम उसको ऑसिलोस्कोप पे देखना चाहते हैं. ठीक है, ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे क्विकली, 1 मिनट में देखेंगे, वो तो दिखाई देगा. तो उसके लिए हमको सिमुलेट करना पड़ेगा. और आप देखिए इनपुट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, येलो वाला, यस और नो? हाँ, अभी देखो जब वो नीले के नज़दीक जाता है तब लॉकिंग चालू होता है. जब तक वो नज़दीक नहीं जाता, डेल्टा एफ छोटा नहीं होता तो लो पास फिल्टर पास नहीं करता. अभी वो डेल्टा एफ ज़्यादा है तो लो पास फिल्टर पास नहीं कर रहा है. अभी वो नज़दीक जा रहा है, उसके बाद लॉकिंग होगा और लॉकिंग वैसे कंटिन्यू. ब्लू वाला आउटपुट है. अभी लॉकिंग हो गया क्या? देखा? डिड यू सी द लॉकिंग? अभी दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना. हाँ, इट मीन्स दी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज फॉलोइंग इनपुट फ्रीक्वेंसी. तो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ. ठीक है, ये थोड़ी देर तक चलेगा, फिर सडनली लॉक लॉस्ट होगा बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी टू सच ए हाई एक्सटेंट कि VCO बोल रहा है कि अरे भाई इतना मेरा रेंज है नहीं, तो मुझे चाहत तो है प्रोड्यूस करने की लेकिन मेरे रेंज के बाहर का है, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ लॉक. तो सडनली वो ब्लू सिग्नल है ना, एकदम से लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्री रनिंग पे आ जाएगा सडनली. तो ये हम देखेंगे.
थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्या? आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग? हाँ, देखा आपने? डिड यू सी दैट द लॉक इज लॉस्ट? हाँ, अभी हम इनपुट फ्रीक्वेंसी येलो वाला है ना वो कम कर रहे हैं। अभी येलो वाला फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं। थोड़ा बढ़ेगा और बाद में कम कम हो जाएगा। अभी रिड्यूस हो रहा है। Now the input frequency is getting reduced और when it comes close to blue signal फिर से लॉक होगा। फिर जब इनपुट फिर से कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी तो आउटपुट ऑल्सो कम होता जाएगा और एक टाइम पे वो लॉक फिर से अनलॉक हो जाएगा। राइट नाउ द थिंग्स आर नॉट स्टेबल बिकॉज उसका ट्रिगरिंग है ना, देर आर टू सिग्नल्स और हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ऑसिलोस्कोप को पता नहीं चलता कि किसका सिग्नल स्टेबल दिखा हो। एक सिग्नल स्टेबल दिखा है तो दूसरा सिग्नल अनस्टेबल होता है क्योंकि उसका साइकिल अलग अलग है। अभी देखो वो लॉक हो रहा है। डिड यू ऑब्जर्व लॉकिंग? उसके बाद फॉलोइंग हो रहा है। यस और नो? हाँ, अभी वो छोड़ देगा थोड़ी देर के बाद और फिर से ब्लू सिग्नल झट से फ्रीक्वेंसी अलग करेगा। हाँ देखो, समझ में आ गया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? ये है PLL का सही ऑपरेशन। और फिर से हम इस पे जाते और देखो हमने प्लॉट किया वो वही था। वॉट एवर वी ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वेवफॉर्म, सेम थिंग वी हैड ड्रॉन हियर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये हमने देखा। ठीक है, was this session useful to some extent? Hello, was this session useful? Okay, I apologize because I did not bring the headphone. मैंने हेडफोन लाना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया घर में, कॉलेज में आते आते वो भूल गया, इसलिए आपको हिसिंग साउंड सुनना पड़ा मेरी वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। आई विल अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड दिस वंस अगेन इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, तो आपको वीडियो सुनने में मज़ा आएगा। ओके, आज को इतना ही काफ़ी है। तो कुछ नया सीखने को मिला आपको आज? yes yes yes, good good good, very good very good. So thank you and we'll take a pause. I hope you have seen the notices also. आप नोटिस देखिए। Thank you and we'll have pause and have a nice day. चलिए फिर, thank you very much.